2016 में यू डिसाइडेड टू कम इन फिनटेक, तो ये क्या एक प्लान स्ट्रैटेजी थी? My mother was a banker, so finance was very natural to me. ऐसी कौन सी इनोवेशंस आपको आने वाले टाइम में लगती हैं कि जो एक नया वेव लेकर के आएगी? I think UPI was a game changer, of course. UPI is the best platform that came out of India. एक village में भी young generation, young people, they know how to use a smartphone. They know कि कौन सा app use करना है. अभी account aggregators पे government का बहुत focus है. तो I think उससे lending बहुत easy हो जाएगी. One advice to youngsters to कि वो सक्सेस पा सकें, शॉर्टकट वाली. Keep believing in yourself, because if you won't, no one else would. हाय उपासना, दिस इज़ डिम्पल मित्तल. आपका स्वागत है हमारे शो में शक्ति की समृद्धि, जहाँ पर हम वुमेन लीडर्स को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं. और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है उपासना बत्रा. शी इज़ डायरेक्टर ऑफ स्ट्रैटेजी फ्रॉम पेयू. उपासना, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपकी जर्नी को जानने के लिए. Thank you so much, Dimple, and it's a pleasure to be here. And yes, I'm glad to be here. थैंक यू. उपासना के बारे में जितना कहें उतना ही कम है, क्योंकि फ़िनटेक की दुनिया में एक जाना माना नाम है, एक जानी मानी आवाज़ है. और फ़िनटेक जिस तरह से इंडिया में ग्रो कर रहा है, इंडिया कहीं भी देश में पीछे नहीं है जब हम बात करते हैं डिजिटल पेमेंट्स के बारे में. इसमें हम रूबरू करना चाहते हैं इस शो में, वो करना चाहते हैं उपासना की बेहद ख़ास जर्नी, क्योंकि हमने देखा है स्ट्रैटेजी, लीडरशिप, इनोवेशन, इन तीनों को ही उपासना ने बहुत ही नए मायने से देखा है और एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया है पेयू में जिस तरह से ये काम कर रहे हैं. तो उपासना, पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी आपकी जर्नी के बारे में. बचपन से या शुरुआती दिनों से पेयू में आज स्ट्रैटेजी लीड तक अपनी जर्नी के बारे में बताएं. कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे अपनी जर्नी? Thank you, Dimple. I think this is a very personal question. सबसे पहले I think because my mother was a banker, so finance was very natural to me. It came very naturally to me, and as a kid, I've seen a lot of my uncle, aunts coming for financial advice to my mother. So when they say girls are not meant for finance, girls are not good at maths, for me that was never true, because I've seen my mom do all of that. Also, I think my mom raised me and my brother as equal. So again, these are very small lessons, but now when you look back, you realize कि आपकी life में ये सब छोटी छोटी चीज़ों ने कितना how much difference do they make to your life. And also I believe as a kid, again, I was never told that you can't do, you can't dream, you can't believe in yourself. My mom dreams were, I think, bigger for me than my own dreams. So I think all those things laid a very solid foundation for my life. So I majored in finance from IIM Calcutta. Then I went on to work in banking. So again, finance, banking was very natural to me. And then fintech was booming in the country. And I think back in 2016, I decided to move to fintech. Then technology came very naturally to me. I realized as a kid, I would enjoy a lot of sci-fi movies. And again, I realized, my love for technology only grew over time as I spent more time doing finance and technology. Also, the most fascinating part, I think, of my career was, doing things, building things which have not been done before, which have never been done before. It gives you another kind of excitement and satisfaction when you strategize something, execute it, and see it scale, and it is impacting millions of life. Right. So I think I have always enjoyed doing that, and that gives me more satisfaction. तो आपने बहुत ही खूबसूरती से अपनी फैमिली और अपने मदर को इस चीज़ का श्रेय दिया. आई थिंक यू ओ इट टू योर मॉम, बिकॉज व्हाट वी हैव सीन इन इंडियन फैमिलीज इज वी आर हेजिटेंट टू टॉक अबाउट मनी. मुझे ऐसा लगता है कि फैमिलीज़ में कहा जाता है पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसा हाथ का मैल है. हमारी कंडीशनिंग बड़ी डिफरेंट होती है. बट ऐसा कि आपने कहा कि फाइनेंस बहुत नेचुरली आया, तो ये थोड़ी सी मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा. एंड बीइंग अ मदर, एंड बीइंग अ मदर ऑफ आई मीन टीनेजर किड, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों से इसके बारे में बात करें. राइट? आई थिंक दैट प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन योर लाइफ, राइट? Absolutely, yes. ओके. अगर हम बात करें कि जब आपने कहा कि 2016 में यू डिसाइडेड टू कम इन फिनटेक, तो ये क्या एक प्लान स्ट्रैटेजी थी या नेचुरली आपका इंटरेस्ट इंक्लाइन हुआ, आप ग्रो करते गए? थोड़ा सा आप बताइए. इट इज़ लाइक यू गॉट द अपॉर्चुनिटी तो आप इसमें आ गए, या ये प्लान था?
हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला, मैंने अपना करियर फाइनेंस से ही स्टार्ट किया. आई हैव स्पेंट कपल ऑफ इयर्स इन फाइनेंस बैंकिंग, एंड देन आई थिंक 2015 was the year when fintech was actually booming in the country. A lot of startups were getting funded, and there was a lot of excitement about it. और 2016 में, then when this opportunity came to me, and of course I was fascinated, and I will be honest, it was a big risk. I wasn't sure कि ये कैसा, will it be good for my career, will it not be good for my career, but I just believed in it and I just decided to take the plunge. By God's grace, it has turned out very well for me, but because I think I entered the field when others could not even understand what Right, that's fintech the is. point. Yes, yes. So I think with God's grace, I got the opportunity at the right time, and I think I picked it up, I lapped it up, and that has really helped me, define my career in an absolutely new direction. Yes. वेरी नाइस टू नो. तो जैसे कि आपने कहा, आपने एक राइट समय पे एंट्री ली. आई थिंक टेकिंग अ डिसीजन एट द राइट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, Correct. जो हम नहीं ले पाते हैं. तो मुझे Absolutely. आप थोड़ा सा पहले चलिए फिनटेक की दुनिया में चलते हैं और आपसे और फिनटेक को समझते हाँ हैं. जी. बिकॉज भारत में जब हम बात करते हैं फिनटेक की, वी आर सीइंग अ वेरी डिफरेंट वेव. और चाहे आप यूपीआई की बात करें, एम्बेडेड फाइनेंस की बात करें, क्रेडिट ऑन यूपीआई की बात करें, आपको कहाँ एक ऐसी नेक्स्ट बड़ी वेव दिखती है फिनटेक में आने वाले समय में, भारत में स्पेशली. तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हमें प्रकाश डालेंगे तो इट विल बी रियली नाइस. बिल्कुल. आई थिंक अब मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं फिनटेक में, और व्हेन आई लुक बैक, आई थिंक हर दूसरा तीसरा साल एक नया ट्रेंड आया है, न्यू Right. टेक्नोलॉजी आई है, एंड आई थिंक दैट कीप्स यू ऑन योर फीट. एंड आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मुझे एक्साइट करता है टेक्नोलॉजी और बैंकिंग के बारे में, कि every 3 years we are doing something new, which has again never been done before. So abhi ke time pe, I think UPI was a game changer. Of course, UPI is the best platform that came out of India. It is a most successful story that came out of India in recent times. Right. And of course we have seen ki how a lot of international countries are adopting UPI. आज के टाइम में मुझे लगता है आप बोलेंगे कि हर कोई आजकल AI की बात कर रहा है, बट AI इज़ द न्यू थिंग. एंड मैं भी अपने डे टू डे काम में ये देखती हूँ कि इतने सारे प्रोसेसेस हैं जो अभी हम लीनियरली सॉल्व करते हैं. नाउ आई थिंक विद AI अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली जो बहुत ही मैनुअल है, all of those things can be automated. Your customer experience can be really improved. Your processes can be much faster and much better. So everything, I think across the organizations, 1-2 साल पहले लोग बोलते थे कि AI के यूज़ केसेस, AI के सैंड बॉक्स ट्राई कर रहे हैं, बट आई थिंक अब वो डिप्लॉयमेंट का टाइम आ गया है, वेयर ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्चुअली सीइंग अ डिफरेंस विद न्यू AI मॉडल्स, स्पेशली बैंकिंग में फ्रॉड रिस्क मॉडल्स, अंडर राइटिंग मॉडल्स. यू आर एबल टू ट्रूली कस्टमाइज फॉर योर कस्टमर्स. जैसे पहले ना कंसल्टिंग में बोला जाता था कि देर आर 4 काइंड ऑफ पर्सोनास इन इंडिया. विल से urban affluent, urban aspiring, rural and rural underserved, और उसी 4 में सबको डिफाइन किया जाता था और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती थी. right. आज के टाइम में आप अपने हर कस्टमर के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. दैट इज़ द पावर दैट AI gives to you. Okay. So I think AI is definitely the most emerging trend in fintech. AI की जब हम बात करते हैं, आजकल बहुत जैसे कि AI के बारे में आ रहा है कि पीपल, AI इज़ रिप्लेसिंग पीपल, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग AI को सीख करके अडॉप्ट करते हैं वो ज़्यादा आई थिंक ग्रोथ को मांगते हैं, डिजर्व करते हैं. अगर आप फिनटेक की हम बात करें तो AI ऐसी कौन सी चीज़ को आपको लगता है कि एक ऐसी चीज़ जिससे AI फिनटेक में आने से फिनटेक का पूरा हम दशा बदल सकते हैं, या उसका एक मतलब एक आउटलुक बदल सकते हैं, तो कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि AI काफ़ी सारे प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर देता है. जैसे आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको रिकन्सिलिएशन करना है, आज के टाइम में एक इंसान बैठ के 4 फाइल्स ओपन करेगा एंड देन ही विल मैच कि ये फेल है, Right. सक्सेस है. तो आई बिलीव कि ये करने के लिए आपको एक इंसान को वो काम करने का क्या ज़रूरत है. व्हेन एन AI मॉडल कैन स्कैन थ्रू ऑल योर बिग फाइल्स एंड गिव यू एन आउटपुट, और एक्चुअली इट कैन हेल्प यू prevent transactions failure, or can give you results where you can actually take corrective actions beforehand. So one is it is able to do so a lot of low level task is what I believe is AI is good at solving, so that humans can actually use their brains for higher level task. ये मेरा मानना है.
आई थिंक दिस इज़ अ गुड पॉइंट। जब हम मतलब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एआई फिनटेक की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि उपासना ने कई सारे अवार्ड्स और रिकग्निशन भी लिए हैं। सो एमर्जिंग वुमेन लीडर, वुमेन आई थिंक वुमेन इन BFSI, राइट, Yes. एंड यंग वुमेन लीडर ऑफ इंडिया, कई अवार्ड से सम्मानित की गई हैं उपासना। तो आई थिंक ये बहुत ही मोटिवेशनल Thank है you. हम सब के लिए। Thank और you. आप मेरे ख्याल से FICCI FLO के साथ भी जुड़े हुए Yes. हैं, एंड हाँ. BSc फोरम एडवाइजरी कमेटी के भी मेंबर हैं। Yes. तो इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं, तो एक वुमेन के लिए एक सवाल आता है कि इतनी हाई परफॉर्मेंस टास्क जो आप करते हैं या हाई प्रेशर वर्क करते हैं, इमोशनल वेलबींग को कैसे मैनेज करते हैं? हाउ डू यू बैलेंस इट? कैसे बैलेंस करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. समटाइम्स इवन आई डोंट नो द आंसर. And I have a young kid as well. So my hands are full. Right. You know, I think life में हर स्टेज पे एक पर्टिकुलर चीज़ प्रायोरिटी लेता है. Sometimes you know it's your family, it's your kid, sometimes it's your work. So I think these days I see, I operate like how airport पे, that landing station पे, that person whose job is to bring down planes one after the other. You know, there are so many planes in the sky, Right. and you are like, which one do I bring out first? And they don't panic. They're like, okay, one plane at a time. हाँ. So this is, I think, my mantra. That is how I operate. Okay. You know, the task at hand जो सामने है उस पर full 100% focus करके उसको deliver करना, and then move on to the next thing. And you know, my to-do list is, you know, always growing. It's never done. Right. But I think now I've reached a point in life, you know, where I'm not too bothered about how big my to-do list is. You know, I do one thing at a time, give it my all, and then move to the next thing. ग्रेट, आई थिंक बहुत ही अच्छा एडवाइस मंत्रा हम सब के लिए है। जब हम बात कर रहे हैं हाई प्रेशर वेल बीइंग की एंड वुमेन, वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन अचीवमेंट, Yes. तो एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन यंग वुमेन को जो इस इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रख रहे हैं? सो वो वुमेन जो फिनटेक में आना चाहते हैं, यू नो, फाइनेंस की दुनिया में आना चाहते हैं, आप कौन सा एडवाइस उनको देना चाहेंगे ताकि उनकी जर्नी सक्सेसफुल बने? और जो आपके कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे उससे आप बताएं कि उनको कुछ मदद मिल पाए। बिल्कुल. तो एक बार मैं एज अ गेस्ट लेक्चर आई वेंट टू IIT बॉम्बे का MBA स्कूल, and when I was speaking to the class I realized it was a finance course and the finance professor has invited me. वो पूरा class में they were all boys, and there was not a single girl in the room, and it took me a while, and then I realized when I'm looking around that there is not a single girl in the room. So I don't know, I think women are always told, you know, you are not good with numbers, you don't understand maths, finance is not something that you would know, and that I think is a very general assumption. And trust me, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. I was always good at maths, like I said, because for me I've seen my mom as a banker. Maybe that was so normal for me. But I think my advice would be ki read about women, you know, wherever, whatever you aspire to be, read about women who have done that before you. You know, have mentors, surround yourself with women who are like-minded. And I think most importantly, don't let anyone tell you that you are not good enough. You know, and dream as big as you can. You know, like how we, like I look at my kid and I say, like, his thinking is not like, he's not wearing blinders when he's thinking. He will just say things, and he will think out of the box, as we say. तो मेरा यही मानना है कि कभी भी अपनी थिंकिंग को लिमिट मत करो ये सोच के कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी. थिंक बिग, देन सी हाउ यू कैन डू इट, एंड यू ट्रस्ट मी, गॉड विल ऑलवेज गिव यू अ वे टू डू इट. आई थिंक बहुत ही अच्छा एडवाइस है, बिकॉज अच्छा आपको क्या लगता है कि जो फिनटेक में आप अपने अराउंड देखते हो, आप AU में है लेट्स से, या आप और फिनटेक कंपनीज में देखते हैं जनरल ट्रेंड के बारे में, अगर हम बात करते हैं, कितनी वुमेन आपको लगता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन आपको लगता है अभी इस सेगमेंट में, और क्या आपको लगता है कि वुमेन डाइवर्सिटी पे हमें ध्यान देना चाहिए और वुमेन को इनकरेजमेंट मिलना चाहिए कि वो फाइनेंस में आए, फिनटेक में आए? तो अगर आप थोड़े से आंकड़े या नंबर्स हमें बताएंगे कि आपके अराउंड कैसा सिनेरियो है, तो हमें थोड़ा समझने में और आसानी होगी. I think, see, because I have operated in banking fintech throughout my career, I see a lot of women join the workforce, but as we start growing up the career ladder, Right. वहाँ मुझे लगता है धीरे धीरे वुमेन का नंबर कम होता जाता है. और उसका मेजर रीज़न मुझे ऐसे लगता है क्योंकि इन अ सोसाइटी लाइक इंडिया आज भी सब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, ऑफ किड्स, ऑफ फैमिली इज स्टिल विद women. And that is where women are always
is struggling between managing their work duties and their home duties. तो मुझे लगता है वहाँ पे it comes on the organization and the family to support a woman. So I also believe like organizations now are offering a lot of flexible work hours to women. Because when your kids are younger and all of that, and if an organization support a woman in those crucial years, a women are generally very loyal and very hardworking. So you see eventually they pay off to the organization in a much bigger way. So organizations should think about it. We need to invest in flexible work hours, especially at the stage where women need it. Because that is when women start dropping off from the workforce, Right. and then it's very difficult to get them back, because it's only for few years that your kids require more of you than in later years. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा women को देना चाहिए. Organization should support women in that phase of their life. आप बिल्कुल ठीक बात है. आई थिंक क्योंकि आई थिंक कितना ही हम ग्रो कर लें, लेकिन वो जो एक इमोशनल टच होता है फैमिली के साथ, फैमिली को खुद से करने वाला, कि खुद से ही करना है, आई थिंक वो वुमेन को निकाल पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई पर्सनली सीन दैट ऑल्सो. आई थिंक मतलब नंबर्स भी ऐसे ही कहते हैं. 13% ओनली बोर्ड सीट्स आर फिल्ड विद वुमेन एंड 5% ऑफ आई थिंक इंडियन कंपनीज, आई मीन इंडियन CEOs आर वुमेन. द रीज़न फॉर दैट इज़, जैसे कि आपने कहा कि वो ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं, वर्कफोर्स से बाहर आ जाते हैं. तो एक लीडरशिप पोजीशन के बारे में बात करते हैं. यू आर डायरेक्टर ऑफ स्ट्रैटेजी, यू आर एट अ लेवल, यू आर लीडिंग, आप लीड करते हो. तो आप थोड़ा सा इस बारे में अगर हमें बताएं कि वुमेन को अगर लीडरशिप पोजीशन पे जाना है तो व्हाट बेस्ट स्ट्रैटेजी वो लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि उनको वो मदद मिल पाए. एक तो मुझे लगता है लाइक आई ऑलवेज सेड कि फैमिली का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अ फैमिली शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट वुमेन करियर्स. फिर ऑर्गेनाइजेशंस को भी विद फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स दे शुड बी एबल टू सपोर्ट. और मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन शुड ऑल्सो वो कहते हैं ना कि ग्लास आधा खाली नहीं रखना चाहिए, आधा फुल होना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन ऑल्सो शुड फ्यूल देमसेल्व्स. दे शुड टेक आउट टाइम फॉर मेडिटेशन, फॉर वर्कआउट, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. तो मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि women अपना सब कुछ में they ignore themselves or they neglect themselves. So they should invest in themselves as well. Because अगर वो if they are satisfied with what they are doing, they will take better care of the people around them and even their employer. एकदम So ठीक बात yes. है. अब जब हमने बात करी है कि वुमेन को अपना ख्याल रखना चाहिए, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर आप फिनटेक में बात करते हैं इनोवेशंस की, तो आपको क्या लगता है Tier 2 Tier 3 सिटीज़ या मेट्रो सिटीज़, आपको क्या लगता है कि मेट्रो सिटीज़ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आने वाला है इस सेगमेंट में या फिर Tier 2 Tier 3 सिटीज़? थोड़ा सा इस समय हमें बताएं. हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड आई थिंक ये डायनामिक्स बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रहा है. मतलब आप आज के टाइम में देखिए कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर है, मे बी वो डिजिटली सैवी नहीं होगा, उसको स्मार्टफोन पे सब ऐप्स यूज़ करना नहीं आता होगा, बट उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है, मे बी हिज डॉटर, शी वुड नो. मतलब आज के टाइम में एक विलेज में भी यंग जनरेशन, यंग पीपल, दे नो हाउ टू यूज़ अ स्मार्टफोन, दे नो कि कौन सा ऐप यूज़ करना है. Right. तो आई हैव सीन यूज़ केसेस वेयर मतलब एक ट्रक ड्राइवर की बेटी ने उनको सब ऐप्स इंस्टॉल करके दिए कि आप ये सब प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कीजिए, सो हाउ यू कैन इंक्रीज द हाउस होल्ड इनकम. तो वो सब गाइडेंस ना पेरेंट्स अपने बच्चों से अब सीख रहे हैं. तो आई थिंक बहुत ही तेज़ी से, आपको ऐसा लगता था मतलब इंडिया में कि फिनटेक कैसे टेक ऑफ करेगा, बिकॉज लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है. उस टाइम पे मोबाइल इंटरनेट भी बहुत महंगा होता था. और आज के टाइम में आई थिंक इंडिया सबसे फास्ट, मतलब वाई वी से कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट इन फिनटेक, क्योंकि लोगों ने बहुत तेज़ी से फिनटेक को अडॉप्ट किया है. Right. आप पेमेंट मोड्स देखिए, आई थिंक इंडिया में जितने पेमेंट मोड्स हैं उतने किस दुनिया में कहीं नहीं है. यूएस में भी इट इज़ मोस्टली क्रेडिट कार्ड लोग यूज़ करते हैं. इंडिया में लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, पे बाय रिवॉर्ड्स, EMI, मतलब इतने पेमेंट मोड्स हैं, बट पीपल आर यूजिंग इट अक्रॉस. मतलब और ये भी नहीं है कि ये सिर्फ मेट्रो में लोग यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ यंग लोग यूज़ कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है. अक्रॉस जनरेशंस पीपल नो UPI, दे नो हाउ टू ऑपरेट. एक ऑटो वाला ऑल्सो, लाइक वी हैव सीन, ऑटो वाला ऑल्सो टेक्स पेमेंट्स थ्रू UPI. और तो आई थिंक Tier 2 Tier 3 cities with the next generation growing up on technology, they are very well aware और वो अपने पेरेंट्स को सिखा रहे हैं. तो आई बिलीव कि एज दैट जनरेशन ग्रोज अप एंड दे स्टार्ट हेल्पिंग देयर पेरेंट्स, तो काफ़ी तेज़ी से अडॉप्शन होगा फिनटेक का इन Tier 2 3. एंड आई एनीवेज बिलीव कि इंडिया में अडॉप्शन एनीवेज काफ़ी अच्छा है. राइट.
सो अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कि आपको क्या लगता है, लेकिन हम टीयर 2 टीयर 3 की बात कर रहे हैं, व्हाट आर द बॉटलनेक्स? आपको क्या लगता है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, अवेयरनेस इज़ द प्रॉब्लम, इंटरनेट प्रॉब्लम है, एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ दिक्कत है बड़ी टीयर 2 टीयर 3? अगर हमें लगता है कि हम ये सॉल्व कर लेंगे तो हम और तेज़ी से मतलब अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएंगे हर शहर सिटी आई स्टेट में। थिंक मुझे लगता है कि इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेसिबिलिटी सब कुछ आज के टाइम में अवेलेबल है. इट इज़ मोर लाइक कि मोर एंटरप्रेन्योर्स नीड टू कम Right. एंड क्रिएट एप्लीकेशंस और यूज़ केसेस और सॉल्व रियल भारत प्रॉब्लम्स. तो मुझे लगता है आज के टाइम में द इंडिया इज़ रेडी टू अडॉप्ट मोर टेक्नोलॉजी. करेक्ट करेक्ट, आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी आर ऑल रेडी. सबसे कुछ भी अगर इंडिया में चलाना हो तो आई थिंक देश में चलाना हो तो वो इंडिया एकदम अडॉप्ट करता है. बिल्कुल. अभी हम बात करते हैं जैसे कि फिनटेक इनोवेशंस की बात कर रहे हैं. ऐसी कौन सी इनोवेशंस आपको आने वाले टाइम में लगती हैं कि जो एक नया वेव लेकर के आएगी? मुझे ऐसे लगता है इंडिया में जैसे यूपीआई चेंज द फेस ऑफ फिनटेक इन इंडिया. Right. अभी अकाउंट एग्रीगेटर्स पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है. तो आई थिंक उससे लेंडिंग बहुत इजी हो जाएगी. और दूसरा मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जैसे आप लेंड करते हैं, आप सिबिल हिस्ट्री देखते हैं, पे स्लिप्स देखते हैं. आज के टाइम पे गिवन यूपीआई आपके पास इतना ट्रांजैक्शन डेटा है और उस पर बहुत मॉडल्स भी बन रहे हैं. तो आई थिंक लेंडिंग बेसिस योर ट्रांजैक्शन डेटा विल proliferate. तो वो काफ़ी कॉमन हो जाएगा. ओके. और काफ़ी हो रहा है और वो बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है और मुझे लगता है आगे और बढ़ेगा. और आई थिंक वही कनेक्टेड बैंकिंग इज़ अनदर फेस. वो अकाउंट एग्रीगेटर्स उसको पावर करेगा Right, एंड कनेक्टेड बैंकिंग right. अगेन विल बिकम वेरी पावरफुल टूल. आई थिंक ये दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट. एंड कई ऐसे आई थिंक मेजर्स भी लिए जा रहे हैं, कई स्टेप्स में कई लोग आगे बढ़कर इस पे काम भी कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अगर हम बात करेंगे अभी और फिनटेक की दुनिया में चलेंगे थोड़ा सा और आगे जा कर के, तो आप हमें थोड़ा सा ये मतलब एडवाइस दें कि आपको जो लगता है यंग स्टूडेंट्स जो एंटर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हमें अभी भी ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी, इंक्लूजन गैप्स हैं, आपको क्या लगता है उनको कैसे ब्रिज किया जा सकता है? बिकॉज अवेयरनेस क्रिएट करना जैसे कि हमने कहा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हाँ. तो अभी हम वुमेन को भी मोटिवेट कर रहे हैं किस इंडस्ट्री में आए, जिस तरह से हमने बात की, तो आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इंक्लूजन गैप्स को कैसे ब्रिज किया जा सकता है? आई थिंक अगेन उसमें काफ़ी CSR फंडिंग भी जा रही है कॉर्पोरेट्स की. बिकॉज काफ़ी रियलाइजेशन है कंट्री में. आप ट्रेडिंग भी देखिए, अ लॉट ऑफ पीपल आर लूजिंग मनी स्पेशली इन रिटेल ट्रेडिंग. और काफ़ी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, उसका भी लोगों को नहीं पता होता. तो अ लॉट ऑफ NGOs आर वर्किंग इन दैट स्पेस. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अवेयरनेस. और आई थिंक अ लॉट ऑफ फिनटेक्स आर ऑल्सो डूइंग देयर जॉब्स, यू नो, वेयर वी आर ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ फीट ऑन स्ट्रीट हु आर गोइंग एंड एजुकेटिंग द कस्टमर्स कि आपको लोन लेना है तो आप मनी लेंडर के पास ना जाके फॉर्मल सिस्टम में कैसे आ सकते हैं. तो उसके लिए आपको कैसे अपना प्रोफाइल बढ़ाना है. तो काफ़ी अवेयरनेस हो रही है. और क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके लिए भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, RBI, यू नो, रेगुलेटर्स, एवरीवन इज़ क्रिएटिंग दैट अवेयरनेस. और मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल में काफ़ी अवेयरनेस बढ़ जाएगी. एंड ऑल्सो आई बिलीव कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे आपने देखा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर वुमेन, विच माइक्रो फाइनेंस ने वो मॉडल यू नो काफ़ी हद तक हर गांव में जाके प्रोलिफरेट किया कि दे क्रिएट ग्रुप्स ऑफ वुमेन and give loan to them. And I think the repayment track record is almost 99%. You know, so women end up paying. So that is like that is true financial inclusion. तो काफ़ी initiatives हो रहे हैं. और जहाँ जहाँ पे भी pockets हैं, I think this is an opportunity for entrepreneurs in India to, you know, create more ideas, more solutions around it, and, you know, and create successful use cases and stories. जैसे कि हमने कहा कि हम वी नीड टू क्रिएट मोर एंटरप्रेन्योर्स, मोर आइडियाज़ वी इनवाइट. सो ऐसा आपको लगता है कि फिनटेक स्कूल्स, कॉलेजेस में जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स होते हैं, जहाँ पे हम स्टार्टअप्स को मोटिवेट करते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे इनोवेशंस हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं जहाँ पे फंडिंग भी कर रहे हैं. तो डू यू थिंक कि मतलब फिनटेक उस दिशा में भी जा रहा है? आर फिनटेक्स रीचिंग टू दैट लेवल ऑफ सोसाइटी ऑल्सो? मतलब आई थिंक एब्सोल्युटली. और अब तो आप देखिए तो हर स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने प्रोग्राम्स हैं. वो को-वर्किंग स्पेसेस भी देते हैं, यू नो, और वो आपको क्लाउड का क्रेडिट देते हैं. तो आपको स्टार्ट करना, रजिस्ट्रेशन करते हैं आप, वो सब इजी हो चुका है. काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं. तो आई थिंक गवर्नमेंट
इज़ डूइंग इट्स बिट और काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं. तो आई बिलीव मतलब दिस इज़ सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस, नॉट ओनली फिनटेक. आपको कुछ भी करना है, आपका पैशन है, यू थिंक यू आर गुड एट समथिंग, आई थिंक अभी सपोर्ट पूरा है. इवन काफ़ी यू नो मेंटर्स मेंटीज ग्रुप्स भी हैं. Okay. तो वेयर यू कैन रीच आउट. अगेन सम ऑफ देम आर इंक्यूबेटेड बाय गवर्नमेंट. तो कि आपका स्टार्टअप किस स्टेज पे है, आपको उस टाइम पे एक मेंटर चाहिए जिसने वो स्टेज पे स्टार्टअप बनाया हो, Right. समवन हु इज अहेड ऑफ यू इन द कर्व. तो हर चीज़ है आज के टाइम में, यू नो. और फंडिंग, जैसे आपने बोला, फंडिंग का बहुत सपोर्ट है. तो इट्स जस्ट दैट कि यू नीड टू स्टेप अप एंड टेक दैट चांस ऑन यू. ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. लेकिन जब हम इसके बारे में बात करते हैं, जैसे आपने फाइनेंशियल फ्रॉड भी हमने कहा कि फिनटेक में होता है, आपको ऐसा कुछ ग्लिच नज़र आया, आपने जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया या यूज़र्स को देखा या आप किसी और शहर में गए बात करने में, तो आपको क्या लगता है कि आज भी लोग डरते हैं? लोगों को लगता है कि उनकी डिटेल सेव हो जाएगी, उनके जो कार्ड की डिटेल्स है वो सेव हो जाएंगी एंड पेमेंट डबल हो जाती है जैसे कई बारी, फिर वो पेमेंट रिफंड नहीं आती है. तो इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज भी लोग डरते हैं. मतलब जबकि आजकल रिक्शे वाला भी, मुझे लगता है, मैंने तो मतलब एक रोड पे आई वाज पासिंग बाय, तो मतलब वो छुट्टे मांगने वाले जैसे बैठे होते हैं, तो उन्होंने बोला, किसी ने बोला छुट्टा नहीं, तो उन्होंने बोला पेटीएम कर दो, यू नो. मतलब तो आपने कहा कि आप ठीक है यूपीआई कर दो. सो इतने छोटे छोटे जगह तक भी फिनटेक पहुंचा है. लेकिन फिर भी आपका इस पे क्या कहना है कि लोग क्या डरते हैं आज भी अपनी डिटेल्स डालते हुए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज यूज़ करते हुए? देखिए, ट्रस्ट, जैसे आपने बोला, ट्रस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देखिए, आप अपना फाइनेंशियल डिटेल्स वहीं शेयर करेंगे व्हेन यू आर श्योर. और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपने बोला कार्ड का डिटेल सेव हो जाता है, तो उसमें रेगुलेटर्स ने न्यू गाइडलाइंस लाए जिसको हम टोकनाइजेशन बोलते हैं. कि जिसमें आप कार्ड का डिटेल स्टोर नहीं कर सकते बट एक टोकन स्टोर करते हैं. तो ऐसा कर करके, बिकॉज फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स, कॉमर्स, एवरीथिंग मूव्ड ऑनलाइन, फ्रॉडस्टर्स ऑल्सो मूव्ड ऑनलाइन. तो आपने देखा है काफ़ी फ्रॉड अब ऑनलाइन होने लगा है. तो जैसे जैसे यू नो इट्स आप धीरे धीरे कैचअप करते हैं कि अच्छा ये सब प्रॉब्लम है, देयर आर सॉल्यूशंस. ऐसा नहीं है आप हमेशा कैचअप कर रहे हैं, कई बार आप प्रोएक्टिवली भी काफ़ी सारे सुविधाएं करते हैं सो दैट लोगों का ट्रस्ट बना रहे. देखिए, मैं मानती हूँ कि आई थिंक हम लोग ने कब ऑनलाइन शॉपिंग करना, पेमेंट करना स्टार्ट किया, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस स्टार्टेड विद फ्लिपकार्ट और अमेजोन. ठीक है, उस टाइम पे उन लोग ने ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया था? आपको ये कंफर्ट था, उन्होंने बोला था नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी. तो आपको था अच्छा मुझे नहीं पसंद आया, और उसी टाइम आप रिटर्न करते थे, आपका पैसा वापस आ जाता था. आपने एक बार किया, दो बार किया, धीरे धीरे आपका वो कंफर्ट हो गया कि यू नो दिस इज समथिंग आई कैन ट्रस्ट. अब मुझे लगता है कि बिकॉज यू आर सो कंफर्टेबल, या आपके माइंड में वो सेटअप हो गया है कि यू नो शॉपिंग ऑनलाइन इज सेफ, इज ट्रस्टवर्दी. आप आज कितने D2C ब्रांड से भी शॉप करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट पेव दैट वे, बिल्ड दैट ऑनलाइन ट्रस्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ D2C स्टार्टअप्स टू फ्लरिश. नहीं तो अगर कोई छोटा स्टार्टअप ऑनलाइन शॉप क्रिएट करता, आप डरते कि अरे मैं कैसे पेमेंट करूँ, मेरा रिटर्न होगा कि नहीं होगा, मेरा कार्ड डिटेल्स तो नहीं चोरी हो जाएगा. बट बिकॉज दे बिल्ड दैट ट्रस्ट, तो आज आप यू नो कंफर्टेबली यू कैन शॉप अक्रॉस. और फिर आई एम श्योर गाइड, मतलब ऑफ कोर्स रेगुलेटर्स ने जो गाइडलाइंस रखी हैं कि सब यू नो ऑनलाइन प्लेयर्स को फॉलो करनी है, हाउ टू कलेक्ट पेमेंट्स, हाउ टू इंश्योर दैट कस्टमर्स डेटा इज सेफ. तो वो सब प्रोटोकॉल्स तो फिर मैंडेटरी होते हैं, तो उससे भी कस्टमर्स को कंफर्ट रहता है. तो रेगुलेटर्स ऑफ कोर्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल. ओके. लेकिन कोई ऐसी बात आप बताना चाहेंगे एक आम जनता को, एक आम नागरिक को, यू नो एनीबडी हु इज़ नॉट वेरी टेक सेवी, जो बहुत टेक सेवी नहीं है या रेगुलेशंस के बारे में नहीं जानता है, कोई ऐसी दो बातें आप उन्हें बताना चाहेंगे ताकि वो जब ऑनलाइन पेमेंट के लिए जाएं या डिजिटल फाइनेंस के लिए जाएं तो वो ध्यान में रखें ताकि वो बच सकें? ऐसी कोई दो आम बातें आप बताएं जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, उनको हेल्प कर सकता है, मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड करने में और सेफ ट्रांजैक्शन करने के लिए. हाँ, आई थिंक दो चीज़ें जैसे आपने बोला. एक तो मैं बताऊंगी, अभी एक टोकनाइजेशन गाइडलाइंस जैसे लागू हो चुकी हैं. तो आप अगर से अमेजोन या कोई भी पोर्टल पे जाके अपना कार्ड का डिटेल सेव कर रहे हैं, तो वो डिटेल्स या तो आपके बैंक के पास सेव होता है कार्ड का नंबर, आप मर्चेंट के पास सिर्फ टोकन रहता है. तो मर्चेंट आपका कार्ड आपकी परमिशन के बिना नहीं यूज़ कर सकता. ऑल दोज गाइडलाइंस, तो मतलब आप सेफली जाके कहीं पे भी अपना कार्ड टोकनाइज कर सकते हैं. ओके. क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पे एक टोकन सेव हो रहा है. तो या तो आपके फ़ोन में कार्ड डिटेल्स होगा या बैंक के एंड पे, और किसी के पास बीच में नहीं होगा कार्ड का डिटेल्स आपका.
तो मतलब वो आप एकदम सेफली कन्वीनियंटली जाके आप सेव कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बोलूँगी, जैसे आजकल फ्रॉडस्टर्स के बहुत मैसेजेस आते हैं कि आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, आप जाके रिडीम कर लीजिए, राइट। और लोग जाके कर लेते हैं और उनका अकाउंट से पैसा निकल जाता है। तो आप कोई भी यूआरएल जब क्लिक कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि अगर वो जो भी बैंक का है वो बैंक का यूआरएल है कि नहीं। आप नॉर्मली देखेंगे वो यूआरएल में नाम गलत होता है, ओके। तो वो फ्रॉडस्टर्स ने एकदम आपके बैंक के जैसा दिखता हुआ वो पेज बना देते हैं और आप अपना वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाल देते हैं। ओके। तो बिल्कुल ध्यान से अपना यूआरएल चेक कीजिए कि वो यूआरएल आपके बैंक का है, आपका जो भी फाइनेंशियल पार्टनर है उसी का है कि नहीं है। और कोशिश कीजिए आप कोई भी रैंडम यूआरएल नहीं ओपन करके और डिटेल्स डालें। कुछ भी है तो आप अपनी नेट बैंकिंग ऐप पे जाइए, अपना बैंक के पेज पे जाइए और वहाँ जाके डिटेल्स करिए। और अगर आपको डाउटफुल है तो अपने आरएम को कॉल करके पहले वेरीफाई करें। आई थिंक बहुत ही मतलब बहुत ही हेल्पफुल पॉइंट्स आपने बोले। टोकनाइजेशन की अगर मैं बात करूंगी तो जब हम पेमेंट करने जाते हैं वहाँ पे कोई ऑप्शन आता है, कैसे पता चलेगा कि आम जनता को कि उनको टोकनाइज करना है? इज देयर ऑप्शन? थोड़ा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो उसमें होता है कि जब भी आप पोर्टल पे आपको बोलते हैं कि आपको यहाँ पे कार्ड का डिटेल सेव करना है क्या, उसके लिए आपको एक और ओटीपी आता है। ओके। तो जब आप कार्ड्स का डिटेल सेव कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ एक टोकन सेव हो रहा है मर्चेंट पे, वहाँ पे आपका कार्ड का नंबर नहीं सेव होगा। अगर हम सेव पे करेंगे तो भी नंबर से कार्ड डिटेल हाँ, सेव तो नहीं भी होगा? कार्ड का डिटेल सेव नहीं होगा। ओके, ग्रेट। और जैसे कि आपने कहा यूआरएल, तो यूआरएल मतलब जैसे स्टार्ट होगा वो http www. लेट्स ICICIbank.com/ फिर उसका नाम। Yes. तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो यूआरएल में पहला नाम हो वो हाँ। फाइनेंशियल पार्टनर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक का हो। दिस इज व्हाट यू तो आप मीन। वेरीफाई कीजिए कि वो आईसीआईसीआई बैंक का वेबसाइट है, सपोज ICICIBank.co.in, तो वही आ रहा है यूआरएल में कि Okay. कुछ और आ रहा है। ओके ओके। आई थिंक बहुत ही बेहद यूज़फुल आई थिंक दो बातें आपने बताई जो डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में आई थिंक सबको हेल्प करेंगी। आगे बढ़ते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, थोड़ा और रूबरू गुफ्तगू करते हैं आपसे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, आपको क्या लगता है कि आपकी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जर्नी में जिसने आपको आज एज अ लीडर शेप किया? एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगा कि हाँ मतलब जिसने आपको हेल्प किया इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए? तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बट आई थिंक फॉर माय करियर कोई भी एक डिफाइनिंग मोमेंट नहीं था विच चेंज मी, बट आई थिंक आई वुड से सराउंडिंग योर सेल्फ विद द राइट पीपल इज़ वॉट मेक यू, एंड ऑल्सो आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट या पॉइंट। सो आइदर आप अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं बहुत कुछ, और दूसरा ये है कि आप बुक्स जो written by the greatest minds that really shape your thinking. So for me I think couple of books that influence me or my thinking, like the Paranoid Survive is by Intel CEO Andy Grove, और उन्होंने वो बुक 96 में लिखी थी, और उन्होंने तब भी ये लिखा था कि हाउ टू ग्रो अ कंपनी, हाउ डू यू सर्वाइव वन क्राइसिस आफ्टर द अनदर। And I think वो 30 years down the line it's as true as it was 30 years back. So some of the life principles shared by Ray Dalio in his book Principles, he shared his life principles and work principles. Again, I think that book really influenced me, how you make high quality decisions and how that actually shape an organization. तो a lot of some of those things really stay with you. अभी मैंने recently एक book पढ़ी थी Amazon पे, Working Backwards, कि how they think of the outcome first and work backwards, how to build strategy to achieve that outcome. I think a lot of organizations today draw inspiration कि how to build a high performing organization like Amazon. बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी पर्सनालिटी होती है कि कौन सी चीज़ आपके साथ रहती है, सम थिंग्स रियली स्टे विद यू, कि एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक तो बुक पढ़ना और हाउ डू यू अप्लाई ऑल दोज लर्निंग्स इन योर डे टू डे लाइफ ऑल्सो रियली हेल्प्स यू ग्रो। तो आई थिंक फॉर मी दैट रियली शेप्ड बुक्स एंड आपने जो दो तीन बुक्स के नाम बताए, आई थिंक मैं तो पढ़ने वाली हूँ, लुक वेरी वेरी इंस्पायरिंग मतलब। Absolutely. और आई एम श्योर कि जो टीचिंग्स आपने ली, उन प्रिंसिपल्स को आपने अप्लाई किया, हेल्प्ड यू बिकम अ लीडर। Yes. ऑफ कोर्स आपने बहुत मेहनत की, जैसे आपने कहा कि आप काम करके दूसरों पे एहसान नहीं कर रहे हैं, अपने काम को अपना काम मानिए। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्रिंसिपल टू अप्लाई। और ये Absolutely. आपकी जर्नी में तो कुछ और चलते हैं आप आपकी पर्सनल जर्नी की तरफ। आपके क्या शौक हैं, थोड़ा अपने शौक के बारे में हमें बताइए। कैसे आप फ्री टाइम में यूटिलाइज करते हैं? काम तो आप बहुत करते हो क्योंकि आप लीडरशिप, एग्जीक्यूशन, स्ट्रैटेजी, यू आर एट दैट लेवल, राइट? सो व्हाट पर्सनल योर चॉइसेस यू वुड लाइक टू शेयर विद अस टुडे? आई थिंक पर्सनल चॉइसेस, जैसे मैंने आपको बोला, आई थिंक मेडिटेशन, माई वर्कआउट, आई थिंक दे आर सैक्रोसैंक्ट। मतलब
I won't compromise. No, they are as equally important as my work. So because I think that keeps me going, and of course spending time with family and my kid. I think that fuels me up. So पर टाइम कैसे मिलता है? मतलब आई थिंक एवरी वुमन कंप्लेन्स वी आर शॉर्ट ऑफ हैंड्स एंड टाइम. हाउ डू यू गेट टाइम? So weekends, evening, you have to take out time. We can always complain time नहीं है, पर हर चीज़ के लिए time निकालना पड़ता है. And you are able to balance that well, right? I think so. I would like to believe so, yes. So weekend you give it to your family and kids? Mostly, well, of course, I catch up on reading. So I take out my time as well, but then I compensate, with time for my family as well. अब थोड़ी सी जैसे कि प्रोफेशनल हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसा चैलेंज आपको लगा एज अ वुमन व्हेन यू वर ग्रोइंग राइट फ्रॉम अ पोजीशन, जिस पोजीशन से आपने स्टार्ट किया इस पोजीशन तक आप आए, कोई ऐसा चैलेंज जो आपने फेस किया और उसको कैसे ओवरकम किया आपने? Being a woman, आई थिंक ये क्वेश्चन मुझसे पहले भी पूछा गया है, और मेरा आंसर somehow ये होता है कि आई डोंट रिकॉल एनी इंस्टेंसेस वेयर आई फेल्ट कि यार मुझे बायस किया गया, मतलब बिकॉज आई वॉज अ वुमन. आई डोंट थिंक मे बी आई एम लकी इनफ, और मे बी द वे आई ऑपरेट, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आप मेहनत से अपना काम कीजिए, फुल ओनरशिप से काम कीजिए, डोंट स्टॉप ड्रीमिंग, और अपने काम को आप पूरा तवज्जो दे के अच्छे से काम करेंगे तो इफ़ यू आर मेकिंग रेलिवेंट पॉइंट्स इन अ मीटिंग, इन अ डिस्कशन, आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और अगर आपकी बात में वजन है तो लोग आपकी बात सुनेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद को भी तैयार, बिकॉज आपको अपने में भी इन्वेस्ट करना होता है. लाइक आई ऑलवेज कीप अपस्किलिंग माई सेल्फ, लाइक आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, आई डू अ लॉट ऑफ कोर्सेज. तो और वर्क में भी यू अप्लाई योर सेल्फ. तो आपको धीरे धीरे, मतलब व्हेन यू आर ब्रिंगिंग सब्सटेंस टू अ मीटिंग और अ टेबल, तो पीपल हियर यू. So I don't think, मुझे personally I would say कि being a woman I was not heard. Maybe I have personally not faced any of such. Great to know. आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला जो मेरे दिल के बहुत करीब है. मैंने अपस्किलिंग पे ऑलमोस्ट 20 साल काम किया. और करने के बाद मुझे लगता है बहुत सारे लाखों बच्चों प्रोफेशनल्स के साथ इंटरेक्ट किया. लोग अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं अपस्किलिंग की जब बात आती है टाइम नहीं है, या फिर एक मिथ और है साथ में कि हमने MBA किया है या एनी अदर XYZ क्वालिफिकेशन किया है विच इज़ इनफ. एंड दे डोंट फील द नीड कि टाइम टू टाइम आपको अपस्किल करना है. एंड स्पेशली आप, मतलब अ पर्सन लाइक उपासना हु इज आई एम क्वालिफाइड राइट, मतलब अपने आप में ही एक बैज आप कैरी करते हो, ऑल योर लाइफ यू हैव दैट विद यू. तो आपको क्या लगता है कि ये करने के बाद भी आपको ज़रूरत है अपस्किल करने की, छोटे छोटे कैप्सूल्स की, छोटे छोटे कोर्सेज की, या पढ़ने की? एब्सोल्युटली बिकॉज आज की जॉब्स आर नॉट लाइक जो 40-50 साल पहले होती थी. इट्स नॉट लाइक कि मैंने पढ़ाई कर ली, नाउ आई डोंट नीड टू लर्न. दीज डेज यू आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, और टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है. अगर आप बोलोगे नहीं मुझे तो सब आता है, आपको नहीं आता है. और हर 2-3 साल में थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट. तो नॉर्मली जब भी आपको छुट्टियां होती हैं, जब भी टाइम होता है, मैं हमेशा टाइम निकालती हूँ. आई मेक श्योर मैं साल में एक प्रॉपर कोर्स करूँ. हाँ. तो बिकॉज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो आपका इंटरेस्ट है. नोबडी इज़ आस्किंग यू टू डू इट. तो आपको खुद लगता है कि हाँ दिस विल हेल्प मी फंक्शन बेटर, दिस विल मेक मी अ बेटर लीडर, और दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी विच इज़ फैसिनेटिंग. सो क्या होता है, कई बार आप बस मतलब सीख लेते हो, बाद में यू फिगर आउट वेज टू अप्लाई दैट. तो ऐसा भी होता है कि बिकॉज आपको 3 चीज़ें आती थी, यू कुड कनेक्ट द डॉट्स एंड यू कुड कम अप विद समथिंग विच इज़ क्रिएटिव और विच इज़ नेवर बीन डन बिफोर अगेन. सो आई थिंक दैट इज़ वॉट आई थिंक गिव्स मी सेटिस्फैक्शन. सो सक्सेस मंत्र पकड़ लिया है हमने आपका. तो आप अपने रिसेंट आपने कौन सा अपस्किलिंग किया है, कोर्स किया है, अगर हम हमें बताएं तो शायद जो लोग ग्रो करना चाह रहे हैं या इस दुनिया से जुड़ना चाह रहे हैं, कुछ उसके बारे में अगर आप शेयर करना चाहें तो देखिए, मैंने वैसे फाइनेंस में ही मेजर किया था ड्यूरिंग माय MBA, बट मैंने फिर भी कभी इन्वेस्टमेंट्स में अपना कभी कोई कोर्स नहीं लिया था. तो एक प्रोफेसर हैं अश्वथ दामोदरन, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के. ही इज़ सपोज टू बी, ही इज़ लेजेंडरी. लाइक आई हैव ऑलवेज वॉच्ड हिज वीडियोज़ और रेड अबाउट हिम. तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे पूरा उनका, और वो अपना हर कोर्स, हर लेक्चर के बाद वो यूट्यूब पे अपना फ्री ट्यूटोरियल डाल देते हैं.
तो आपको कोर्स करना है, दीज डेज यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी. उनका सारा का सारा वीडियोस वो हर क्लास के बाद न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का वो अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री में डालते हैं. Wow. तो आई जस्ट डिड कि वन लास्ट ईयर दिसंबर आई सेड 15 days I would do one lecture every day, and that Wow. is how I finished the entire course on investments. ओह वेरी नाइस. सो डिजिटल फाइनेंस में है, इन्वेस्टमेंट्स पे कोर्स किया, आई थिंक इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. और एक बहुत ही मोटिवेशनल मैसेज है हमारे सब यंगस्टर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, न्यू एंट्रेंट्स के लिए, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और फाइनेंस या किसी भी और दुनिया से जुड़े हुए जो लोग हैं. प्रोफेशनल जर्नी का सक्सेस मंत्र हमें मिल चुका है. पढ़ते रहिए, अपस्किल करते रहिए. आगे बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक मोमेंट आने वाला है. उपासना आपके साथ रैपिड फायर करने वाली है. आर यू ऑल रेडी? आई एम वेरी एक्साइटेड. थोड़ा सा आपको Yes, रोलर कोस्टर राइड पे ले absolutely, चलते हैं, yes. एक रैपिड फायर आपके साथ करते हैं. ओके, बिल्कुल. सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. डिस्क्राइब जी. योरसेल्फ इन वन वर्ड. अपने आप को एक वर्ड में बताइए. आई थिंक मैंने बहुत बार बोल दिया. आई थिंक एक्सट्रीम ओनरशिप. ओनरशिप. वेरी नाइस. फिनटेक में नहीं होते तो क्या करते? I think my whole life is around banking and finance. Maybe I think real estate tech. रियल एस्टेट टेक. टू बी कैच्ड. दिस पॉइंट इज टू बी कॉट. ओके. अगर आप सुपर हीरो होते तो फिनटेक की दुनिया में कौन से सुपर पावर लेकर आते? Maybe because बार बार दुनिया फिनटेक की दुनिया बहुत जल्दी बदल रही है. तो ऐसा माई किड वॉचेज अ कार्टून वेयर दे से इट्स मॉर्फिन टाइम वेयर यू मॉर्फ इनटू द नेक्स्ट अवतार. ओह, सो मे बी दैट. यस. वेरी नाइस. लीडरशिप को कैसे डिफाइन करेंगे एक वर्ड में? आई थिंक ऑथेंटिक लीडरशिप. ऑथेंटिसिटी. यस, ऑथेंटिसिटी. ओके. वन एडवाइस टू यंगस्टर्स टू कि वो सक्सेस पा सकें, शॉर्टकट वाली. Keep believing in yourself, because if you won't, no one else would. I think this is wonderful. Last question, fintech in one word. Your favorite fintech innovation or? Fintech ever changing. Thank you, Upasna. It was wonderful. There is no hamper for this rapid fire, but I am very happy and glad. And I'm sure my audience will enjoy this too. और मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी आपका. आज आप इस पॉडकास्ट में आए एंड बहुत सारे अनुभव आपने शेयर करे, बहुत सारी मोटिवेशनल बातें आपने करी, अपनी जर्नी के बारे में बताया. और मैं चाहूँगी कि ये ऐसे पॉडकास्ट चलते ही रहें और ख़त्म नहीं हो, लेकिन ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड. मैं हमेशा ये बोलती हूँ अपने शो में एंड करते हुए. तो ये आखिरी मौका जाते जाते आप सिंगिंग करते हैं, 2 लाइन आप कुछ सुनाना चाहेंगे अगर आप गा पाएँ तो? नहीं, बिल्कुल नहीं. आई एम अ वेरी बैड सिंगर. सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, डिम्पल. नो प्रॉब्लम. तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उपासना, आज आप हमारे शो पे आए. इट वाज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग टॉकिंग टू यू. आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत इंसाइटफुल बातें हमने की, बहुत मोटिवेशनल बातें हमने करी. और शक्ति की समृद्धि का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर हम हर हफ्ते और आपके लिए वुमेन लेकर आते हैं, वुमेन लीडर्स लेकर आते हैं जिनकी जर्नीज़ को हम जानते हैं. तो सीखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए. एक और नए वुमेन लीडर के साथ जल्दी मिलूंगी आपसे नए पॉडकास्ट में. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू उपासना. Thank you, Dimple. थैंक यू सो मच.